Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing great. Abhi Ma'am Zareen was with us and she will surely rejoin again. Don't worry. आप लोगों की मीटिंग हम स्टार्ट करेंगे around 8:03. ठीक है? 8:03 to 4. How's everyone here? आप सब कैसे हैं? Oh, hi, Rosina. You are my student, I remember. So then that's good to hear, Techno. आपको आज की मीटिंग का सारा एजेंडा मैम ज़रीन समझाएंगी और कैसे पूरा वेबिनार चलेगा she'll surely tell you. So you have to be very patient. And Ramadan Mubarak, dear students. How's fasting going on? रोजे कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? And hope so you are here. So mostly जो students आज हमारे साथ हैं उन्होंने attempt की होगी of 2026, right? So hope so आपके papers भी अच्छे हुए होंगे. Khair Mubarak. And that's good to hear. Okay, Maryam, that's great. This webinar is not going to help only those जिन्होंने 2026 की attempt दी है. If you are aspiring for the upcoming exam 2027 का either PMS or CSS, तो फिर आपके लिए भी this is going to be very beneficial क्योंकि आपको पेपर की एनालिसिस दी जाएगी. Musarrat, it's only going to take your 1 hour. We all know Ramzan है, you would not be dedicating 3 whole hours जैसे आपके webinar के होते हैं, so obviously it would be of 1 hour और अगर बहुत भी prolong हुआ it would be till 9-10, not more than that. ये जो आपका क्वेश्चन है दिस इज एन एकेडमिक क्वेश्चन कि कैन इस्लामाबाद डोमिसाइल गिव पीएमएस, ये आपको सर बताएंगे. ठीक है? अरीज, आप चाह रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग हो? ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है, यूट्यूब पे भी हो रहा है और फेसबुक पे भी हो रहा है. सो इसकी वीडियो आपको बाद में यूट्यूब पे भी मिल जाएगी. Yes, it would be uploaded on YouTube. As I mentioned earlier कि ये लाइव जा रहा है और उसके बाद ये यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगा. डोंट वरी. अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मैम एंड वंस मैम इज हियर तो हम उनको हैंड ओवर करेंगे. One of our very respectable teacher उन्होंने आपको जवाब दे दिया है कि can Islamabad domicile give PMS and he said yes, so obviously you can. Saad, so far it's good. Alhamdulillah. Binish A to Z का तो पता नहीं, like पूरा 1 घंटा अपलोड हो जाएगा. Ma'am, if you can hear us. Gee, yes, I can hear you, and I'm so sorry. I had some technical
Hello? जी, am I audible? Yeah, right now you are audible. I जी, guess आपका mute हो गया था. अच्छा, Asma, can you allow me to share my video as well? Yeah, sure. Noah Media team is with us right now. वो host हैं. अगर if you are here तो आप मैम ज़रीन को co-host बना दें. Chale, until then, everyone, I want to give everyone a warm welcome and welcome you to this new session of ours that we're having for the very first time, जिसमें हमारा ये गोल है कि हम CSS के एस्पायरेंट्स या वो नोआ के स्टूडेंट्स हो या ना हो, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे वो जो करंट जो सबसे रीसेंट CSS 2026 के एग्जाम्स हुए हैं उनकी एनालिसिस और में पार्टिसिपेट करें और क्वेश्चन आंसर्स कर सकें. अच्छा, इज माय वीडियो appearing? I can't tell. And am I still audible? Okay, ठीक है, चलें, as long as you can see me, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो नहीं नजर आ रही. Well, so I'd like to welcome you all. Thank you so much for joining us. So this is a first time session. अच्छा, मैं आप सबको कुछ और details देना चाह रही थी कि before we start, कि हमारा एक daily session होगा for this coming week. तो हमारा जो है आज ऐसे का है, कल फिर प्रेसी का है, उसके बाद we're having current affairs, then Pak affairs. Then we will have Islamiyat and General Science. और हर सेशन में हमारा नोआ का अपना फैकल्टी मेंबर होगा जो कि they will take about 10-15 minutes in the beginning to discuss the paper with you. And then for the remainder of the session, you can have a question answer session जो कि हमारी host है Asma. She will manage all of that. So I hope you all share this with your friends, family, anyone interested in giving CSS, anyone who has given CSS, anyone who wants to know about the CSS 2026 exams. And now I'd like to hand the session over to Sir Ali Shahab, who is our esteemed faculty member who's been teaching essay with us for years. And mashallah, he's one of the best English CSS teachers out there. So, sir, if you're with us, I'd like to hand the session over to you now. Thank you very much. Thank you very much, Zareen. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Ali Shahab, and today we are going to have our first paper essay discussion 2026. So, dear students, if you look at the screen, I would like to show you the 2026 CSS essay paper. और इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस में जो तब्दीली आई है थोड़ा सा उस पर हम बयान करेंगे और उसके बाद जितना मुमकिन हो सके इन 10 एसेस की डायमेंशंस हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें और साथ ही हम ये भी डिस्कवर करेंगे कि कौन कौन से फोरम्स हैं या कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं जहाँ से एग्जामिनर इंस्पायर होकर आपको ज़्यादातर ये टॉपिक्स एग्जामिनेशन में इंक्लूड करके देता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, if you look at the screen, 2026 CSS essay के पेपर में फर्स्ट टाइम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो चेंज कर दी गई हैं. पहले जो इंस्ट्रक्शंस थी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, जिसके अंदर ये कहा जाता था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस, आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव एंड एक्सपोजिटरी का इस्तेमाल करें. वो जुमला इस साल आपको नजर नहीं आ रहा. हाँ, जो सिमिलर बातें हैं वो क्या हैं कि प्रिपेयर एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे 2500-3000 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स. यू आर एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्रिहेंड द सब्जेक्ट इशू. अब यहां पे जनाब उसने बड़ा रेलिवेंट जो है आपसे एक सवाल कर दिया, एक डायरेक्शन दे दी कि जो असल मसला है आपको वो समझना बहुत जरूरी है. जो असल सवाल पूछा गया है, सब्जेक्ट इशू करेक्टली एंड आर्टिकुलेट योर स्टांस विद वैलिड आर्गुमेंट्स and clear ideas duly supported by relevant data and example. So आपने जो अपना नुक्ता नजर है वो बयान करना है वैलिड आर्गुमेंट से और क्लियर आइडिया से, जिसके साथ रेलेवेंट डेटा और एग्जांपल्स भी शामिल हो. मार्क्स में
किन चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा? योर आर्टिकुलेशन, अंदाज़े बयान, एक्सप्रेशन, तफसील देने का तरीका, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द इंग्लिश एसे विल बी एग्जामिन्ड। टेक्निकल ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली आपके एसे की टाइप्स भी आ जाती हैं और राइटिंग स्टाइल भी आ जाता है। सो यहां पे पहली बार बहुत सालों के बाद इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दी गई, यानी कि उसने आपको सीधा सीधा यह कहा है कि असल मसला जो है आपने वो समझना है और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टांस, करेक्टली बयान करना है। यहां पे हमेशा की तरह 10 एसेज आपको पूछे गए हैं, जिनमें से जो पहला एसे है दैट इज यूथ बल्ज, अ डेमोग्राफिक डिविडेंड और अ डेमोग्राफिक बॉम्ब। Dear students, most of you are already familiar with these financial terms: dividend, मुनाफा, bomb, obviously नुकसान। बहुत ज्यादा इम्कान यह था कि गुज़िश्ता कई सालों से ओवर पॉपुलेशन पे कोई सवाल नहीं पूछा गया। मेन थीम ऑब्वियसली ओवर पॉपुलेशन ही हमेशा रहा है, मगर ओवर पॉपुलेशन के अंदर इन्होंने एक स्पेसिफिक सेगमेंट को चूज किया है, दैट इज यूथ। कि जो नौजवानों की बढ़ती हुई आबादी है, क्या यह वाकई मुनाफा बख्श है या फिर नुकसानदेह है? डियर स्टूडेंट्स, हमारे रिवीजन सेशंस में भी बुनियादी बात हमेशा यह हुई थी कि जब भी कोई ऐसे आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, टाइटल देखने के बाद आप हमेशा इन 3 चीजों को कंसिडर करते हैं। नंबर 1, ज्योग्राफिकल लेंस, कि क्या आपका ऐसे ग्लोबल डायमेंशन को हिट कर रहा है, सिर्फ थर्ड वर्ल्ड रेलेवेंट है या सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा है। दूसरी चीज, आपका ऐसे सवाल कौन सा पूछ रहा है, व्हाट, व्हाई और हाउ। और तीसरी चीज, द टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट में हम देखते हैं कि क्या आपका ऐसे आर्गुमेंटेटिव है, एक्सपोजिटरी है या लिटरेरी ऐसे है। सो हमेशा ये 3 पर्सपेक्टिव्स हम सामने रखते हैं किसी भी ऐसे को अटेम्प्ट करने से पहले। सो अगेन यही नंबर 3 फॉर्मूला अगर मैं इस टॉपिक की तरफ लेके जाऊंगा, यूथ बल्ज, अ डेमोग्राफिक डिविडेंड और अ डेमोग्राफिक बॉम्ब, तो मुझे यह बताइए कि जो यूथ की बढ़ती हुई आबादी है ये कहां पे है? ये फर्स्ट वर्ल्ड में है या है? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने नूरुलैन एंड करिश्मा, दिस इज इन थर्ड वर्ल्ड। कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर ये आबादी ज्यादा बढ़ रही है, तो यहां पे मेरी ज्योग्राफिकल टाइमलाइन डिफाइन होगी है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या ये ऐसे सिर्फ पाकिस्तान रेलिवेंट है या पूरी थर्ड वर्ल्ड को ये एड्रेस कर रहा है? डेफिनेटली थर्ड वर्ल्ड, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, यहां पे सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, बल्कि ये थर्ड वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान उसको ही एड्रेस कर रहा है। सो हमेशा जब भी हमारे सामने ऐसे आता है ये ज्योग्राफिकल लेंस, हम सबसे पहले अपने सामने कंसिडर करते हैं ताकि हमें यह तयन हो जाए कि हमने लिखना किसके बारे में। तो स्पेसिफिकली आप सिविल सर्विसेज और पाकिस्तान का पेपर दे रहे हैं तो पाकिस्तान के बारे में ही आपकी ज्यादा इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर आपको एक साइड, एक स्टांस चूज करना होता है, और यहां पे उसने क्लियर आपके सामने एक स्टांस रख दिया है कि बताइए कि क्या ये फायदेमंद है, ये आबादी फायदे की है, और डेमोग्राफिक बॉम्ब, या ये नुकसानदेह है। इनमें से कोई एक स्टांस चूज करना जरूरी है। तो अगर तो आपने ये चूज किया कि वाकई ये फायदेमंद है, तो फिर उसको प्रूव करेंगे फायदेमंद कैसे। और अगर आपने ये चूज किया कि ये एक डेमोग्राफिक बॉम्ब है, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये नुकसानदेह कैसे है। यहां पे डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे एक रिपोर्ट रखना चाहूंगा। ये रिपोर्ट है जनाब वर्ल्ड बैंक ब्लॉग्स की, और ये शाया हुई थी 5 जनवरी 2012 को। और यहां पे टॉपिक था यूथ बल्ज, अ डेमोग्राफिक डिविडेंड और अ डेमोग्राफिक बॉम्ब इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब आप देखिए कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज जो है ये उसने मेंशन नहीं किया, मगर ये अंडरस्टूड है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि थर्ड वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान से ही रेलेवेंट ऐसे है। तो गो
आपसे मैंने सवाल नहीं पूछा था, आपको नहीं बताया था कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उसके बारे में जो है ये बात की जाए, मगर आपने ऑलरेडी गेस कर लिया कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उससे ही रेलेवेंट हमने सवालों जवाब यहां पे पूछने हैं। सो अगेन जनाब, ये एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है जिसको पढ़ के आप एक अच्छी जो है रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आप ऐसे भी एक अच्छा लिख सकते हैं। यहां पे बहुत सारे स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं, एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, और बताया गया कि यूथफुल को फॉर द सप्लाई ऑफ लेबर किस तरह ट्रेन किया जा सकता है। बताया गया जनाब कि यूथ किस कदर ज्यादा किरदार अदा कर रही है, और इस पर ठीक ठाक जो है रेफरेंसेस जो हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। हमने इन्हीं चीजों को मद्देनजर रख के हमेशा फैसला किया है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस हमने किस लाइन पे करानी है। गुज़िश्ता साल ओवर पॉपुलेशन पे ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे, मगर यूथ खास तौर पे तवज्जो का मरकज रहा है। यहां पे वन सच ऐसे वाज प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ आवर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जिनसे यही सवाल पूछा गया था कि यूथ बल्ज इन पाकिस्तान डिविडेंड और डिजास्टर। इन्होंने यहां पे बैकग्राउंड के बाद इमीडिएटली जो स्टांस लिया है कि व्हाई द यूथ बल्ज इज अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। अब ये चूंकि ऐसे सिर्फ पाकिस्तान रेलिवेंट था, इसलिए इन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया, मगर इसके अंदर जो अहम बात नोट करने वाली है कि इन्होंने एक सवाल का जवाब दिया कि क्यों यूथ बल्ज एक डिजास्टर है। सो पाकिस्तान की इन्होंने एग्जांपल्स कोट की हैं, और सोशल ब्रेकडाउन, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म, गवर्नेंस फेलियर, ये सब बाइस बन रही हैं यूथ बल्ज को डिजास्टर बनाने में। और यही जो कॉमन रीजंस हैं, आप इन्हीं कॉमन रीजंस को, जिसके अंदर इकोनॉमिक डिजास्टर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल ब्रेकडाउन, रेडिकलाइजेशन और गवर्नेंस फेलियर, इनको बुनियाद बना के थर्ड वर्ल्ड में भी लिख सकते हैं, यानी कि जो ऐसे आपको सीएसएस में दिया गया है। सिर्फ इसके अंदर एग्जांपल्स आपने इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और एक आध अफ्रीकन कंट्री की ऐड करनी थी, बाकी सारे पॉइंट्स हूबहू यही थे। और इन स्टूडेंट्स ने काउंटर आर्गुमेंट मेथड अपनाया। सो काउंटर आर्गुमेंट मेथड में इन्होंने बकायदा जो ऑपोजिशन है, जो कह रहे हैं कि यूथ बल जो है ये फायदेमंद है, इन्होंने उसका रिबटल भी उसी पैराग्राफ में दिया, जो कि प्योरली काउंटर आर्गुमेंट ऐसे लिखने का एक तरीकाकार है। और मसला बयान किया, गो कि ये एक एडिशनल हेडिंग थी वे फॉरवर्ड, मगर इखलाकी जिम्मेदारी के तौर पे उन्होंने थोड़ा सा वे फॉरवर्ड भी यहां पे बयान कर दिया। सो कहने का मकसद ये है कि ओवर पॉपुलेशन पे डायरेक्टली एग्जामिनर शायद उस तरह ना पूछे, मगर उसके किसी सेगमेंट से कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वो पूछेगा जरूर। सो एक अच्छा एसे था अटेम्प्ट करने के लिए, और आर्गुमेंटेटिव एसेज आपके स्टांस पे बेस्ड करते हैं, आपके नॉलेज पे बेस्ड करते हैं, और वंस यू चूज वन स्टांस देन यू पुट एवरी एफर्ट टू प्रूव दैट व्हाई योर स्टांस इज द करेक्ट वन। तो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे अच्छा दिए, आपको एक चॉइस दे दिया कि दोनों में से कुछ भी एक चूज करें और अपने आर्गुमेंट से, रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर से, रेलेवेंट डेटा से, रेलेवेंट एग्जांपल से सपोर्ट करें। सिमिलरली टॉपिक नंबर 2 वाज लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, द मिसिंग लिंक इन पाकिस्तान्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर। कि पाकिस्तान की गवर्नेंस स्ट्रक्चर में लोकल गवर्नमेंट जो है ये एक मिसिंग लिंक है। अगेन रिसेंटली इम्तिहान से गालिबन, खैर पिछले साल की ये रिपोर्ट है, द मिसिंग पीस, द लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड पाकिस्तान एनएसपी। इस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी इस तरह की बातें हुई हैं कि लोकल गवर्नमेंट वो एक मिसिंग लिंक के तौर पे कैसे देखा जा सकता है, कि जो आप फाइंड कर रहे हैं कि इसके अंदर मिसिंग लिंक है क्या। सो ऑब्वियसली इसकी बेशुमार वजूहात हैं कि यहां पे पाकिस्तान की गवर्नेंस सिस्टम में, स्ट्रक्चर में, लोकल गवर्नेंस सिस्टम आपको उस तरह फाल नजर नहीं आता है। हालांकि लोकल गवर्नेंस सिस्टम ट्रस्ट बिल्डिंग में, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज और नेशनल स्ट्रेंथनिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, मगर ओवरऑल गवर्नेंस में शायद आपको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उस तरह फाल या एक्टिव नजर ना आए।
यहां पे वो सारी की सारी वजूहात बयान की गई हैं कि द एब्सेंस ऑफ गुड एंड इफेक्टिव लोकल गवर्नेंस इज इटसेल्फ अ डिसबैंडिंग फोर्स अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी as it entails resistance to the implementation of the very citizen vision that people have. क्योंकि जो सिटीजन विजन है, जो अवामी नुमाइंदगी करते हैं, वो यही लोकल बॉडी के इदारे किया करते हैं. So missing link, again, local governments are not just administrative establishments but the backbone of good governance. So बगैर लोकल गवर्नमेंट के, बगैर इसकी प्रेजेंस के, इसके एक्टिव रोल के गुड गवर्नेंस भी पॉसिबल नहीं है. इट इज द बैकबोन ऑफ गुड गवर्नेंस. मगर अनफॉर्चुनेटली इनसे ज्यादा फायदा नहीं उठाया जाता. तो ये मिसिंग लिंक है. मिसिंग लिंक क्यों है? उस क्यों का डियर स्टूडेंट्स आपने यहां पे जवाब देना है. सो अगेन एवरी एसे मूव्स अराउंड 3 क्वेश्चंस: व्हाट, व्हाई एंड हाउ. सो इफ दे से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कॉलन कॉलन के बाद वाली इंफॉर्मेशन पे हम ज्यादा बयान करते हैं, द मिसिंग लिंक इन पाकिस्तान गवर्नेंस स्ट्रक्चर. अगर तो ये मिसिंग लिंक है तो क्यों है? गिव मी द रीजंस. तो अगर आप मुझे वो वजूहात बताएंगे इसके मिसिंग लिंक्स होने की, तो ऑब्वियसली फिर थोड़े बहुत सजेशंस या वे फॉरवर्ड या रेमेडियल मेजर्स भी आप जरूर डिस्कस करेंगे. ये अखलाकी जिम्मेदारी है और इस पे चूंकि डिमांड है कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे की, यानी कि आप एक ऐसे जामिया ऐसे लिख रहे हैं. सो जब कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी थोड़ा बहुत आप शेयर जरूर करेंगे. सो अगेन डियर स्टूडेंट्स, दैट इज प्योरली एन एक्सपोजिटरी ऐसे. सो द क्वेश्चन जो यहां से ओरिजिनेट होता है, द मिसिंग लिंक इन पाकिस्तान गवर्नेंस स्ट्रक्चर, if it is a missing link, describe why is it a missing link. And when you describe the why, then you must address how as well. कि how can it be improved. तो अगर आपका वास्ता लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से नहीं पड़ा है तो डेफिनेटली इस पे लिखना इतना आसान नहीं है. लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में जो आपके यूनियन काउंसिल्स या जो बाकी जो है आपकी बिल्कुल यूनियन तक या आपके जोन तक जो काम करती हैं, उनका किरदार देख लें वो किस कदर जो है ज्यादा फाल है. हमारे यहाँ आमतौर पे ये सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या जो मैट्रिमोनियल मसाइल होते हैं उन्हीं के लिए ज्यादा जो है ये किरदार अदा करता है रिकंसिलिएशन का. उसके अलावा गुड गवर्नेंस में इसका उतना ज्यादा किरदार नहीं है. और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को आप डेफिनेटली कंपेयर करेंगे आज से 20 साल पहले, जिस वक्त परवेज मुशर्रफ ने ये लोकल बॉडी सिस्टम यहाँ पे मुतारफ कराया था, और वहां पे तहसील के नाजिम होते थे और जिले के नाजिम होते थे जिनके मातहत आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, डीएमजी ग्रुप होता था और इवन पुलिस सर्विसेज भी होती थी. तो डायरेक्टली ये लोग अवामी कंट्रोल में थे उस वक्त. मगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जिस वक्त खत्म हुआ है तो फिर ये तमाम तर चीजें भी खत्म हो गई हैं. आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करना इतना आसान नहीं होता था जितना अपने इलाके, अपने जोन के, अपनी यूनियन के यूनियन काउंसलर को अप्रोच करना होता था, जो आपका मसला फौरी तौर पे लेके चले जाता था नाजिम के पास, एडमिनिस्ट्रेटर के पास, जो अवाम का नुमाइंदा होता था, और वो उस मसले को फौरी तौर पे ग्रास रूट लेवल पे हल करता था. सो अगेन ये मिसिंग लिंक क्यों है, आपने इस क्यों पे बयान करना है और इसको कैसे जो है एक फाल, एक एक्टिव जो है स्ट्रक्चर के तौर पे मुतारिफ कराया जा सकता है, इनेबल किया जा सकता है, आपने वो चीजें बयान करनी है. सो जिन स्टूडेंट्स ने पब्लिक पॉलिसी का या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है वो इस पे बेहतर नोट लिख सकते हैं. इसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड भी था, रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी एज द न्यू नेशनल सिक्योरिटी फ्रंटियर. सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर जो बात हो रही थी डिजिटल टेररिज्म की, उसी से रेलेवेंट साइबर सिक्योरिटी को भी जो है यहां पे ऐड किया गया. सो अब जो नया हमारा मैदान है, जो नया मैदान जंग बन चुका है कौमी सलामती के लिए, वो साइबर सिक्योरिटी का चैप्टर है. अब यहां पे मुझे कुछ ज्यादा बयान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी पे ऑब्वियसली बेशुमार लोग हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार अखबारों में, रिसर्च पेपर्स में, मैगजीन्स में कई बार किया है. इवन हमारे नोवा मैगजीन में साइबर सिक्योरिटी, इसके मसाइल और ये किस तरह एक सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर सकता है, उस पर आर्टिकल्स
डॉक्टर हसनील गोंदल और उनकी टीम ने कंट्रीब्यूट किए। सो इस पे पहली जो है पुराना सारा जो साल है उस पे बहस जारी रही है। एक्सपोजिटरी ऐसे है, सिर्फ आपने एक्सप्लेन ही करना है। और अगेन इस पे अगर आप देखें तो सीएसएस के पेपर में हर स्टूडेंट को उसके बैकग्राउंड के हिसाब से ऐसे का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर कोई स्टूडेंट सोशियोलॉजी या पॉपुलेशन स्टडीज का है तो उसके इस रेलेवेंट यूथ बल्ज का सवाल पूछा गया। अगर कोई स्टूडेंट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का है तो उससे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का सवाल पूछा गया। सिमिलरली ऐसा स्टूडेंट जो साइंस के बैकग्राउंड से आए तो साइबर सिक्योरिटी का सवाल उससे बहुत रेलेवेंट एज इट इज पूछा गया। और जो स्टूडेंट बैकग्राउंड लेके आया इंटरनेशनल रिलेशंस का या जिसकी बैचलर्स है पॉलिटिकल साइंस में तो उससे रेलेवेंट सवाल पूछा गया। तो कहने का मकसद यह है कि एफपीएससी का जो एग्जामिनर है वो स्टूडेंट्स को बाय ऑल मीन्स फैसिलिटेट करता है और उससे सवाल वही पूछता है जो उसके एकेडमिक बैकग्राउंड से रेलेवेंट हो। सो यहां पे बड़ा सीधा सवाल पूछा गया कि इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क फॉर पाकिस्तान। दो बातें पूछी गई हैं, 2 डायमेंशनल एसेज है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और रिस्क क्या है। सो यहां पे डियर स्टूडेंट्स आपने 5 या 6 अपॉर्चुनिटीज और 5 या 6 रिस्क, तो ये 12 पैराग्राफ आपके मेन बॉडी में होंगे जिनको आपने यहां पे ब्रीफ करना है। सो ऑब्वियसली मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आपके सामने है कि अब सिर्फ यूनिपोलर नहीं है बल्कि और भी जो हैं जाइंट्स वो भी इकट्ठे हो रहे हैं और इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए फायदे क्या हैं और रिस्क क्या हैं। सो प्योरली जो है करंट अफेयर्स या एक इंटरनेशनल रिलेशन से रेलेवेंट ये एक सवाल किया गया था। हमारे यहाँ फरीद साहब के इस पे बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, जीशान साहब ने इस पे बहुत ज्यादा जो है बयान किया है और एक एसेंशियल टॉपिक है ये करंट अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसके बगैर जो है गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ती। फिर इसी से रेलेवेंट जो आपसे सवाल किया गया, द वन हु कंट्रोल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड। अगेन जनाब इस टॉपिक की एप्लीकेशन आपने ग्लोबल लेवल तक लेके जानी है क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, थर्ड वर्ल्ड से नहीं है, बल्कि सारी दुनिया से है। सो जिसकी समंदर पे हुक्मरानी है दुनिया पे भी हुक्मरानी वो वहीं पे ही करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स अगर यहां पे कोई यूरोपियन हिस्ट्री या ब्रिटिश हिस्ट्री का स्टूडेंट मौजूद है तो वो अच्छे तरीके से जानता होगा कि समंदर पे हुक्मरानी स्पेन की थी, बट आफ्टर द डिफीट ऑफ द स्पेनिश आर्मडा जो कि क्वीन एलिजाबेथ 1550 जो 16वीं सदी में होती थी उनके दौर में यह वाकया हुआ था, इंग्लैंड की हुक्मरानी समंदरों पे कायम होगी और जिसकी हुक्मरानी समंदरों पे होती है वो दुनिया पे भी हुकूमत करता है। तो डेफिनेटली जो कॉलोनियलिज्म उसके बाद शुरू हुई, इंग्लैंड ने ना सिर्फ दुनिया पे रूल किया बल्कि इंग्लैंड के लिए बोला भी जाता था कि ये वो एम्पायर है जहां पे कभी सूरज गरूब नहीं होता, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। सो अगेन इसके बारे में कोई शक नहीं है कि समंदर पे जो रूल करता है दुनिया पे भी वही रूल करता है। सो अगेन डियर स्टूडेंट्स यहां पे आपके करंट अफेयर का नॉलेज, यूरोपियन हिस्ट्री का नॉलेज, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस का नॉलेज वो बहुत ज्यादा साजगार साबित होगा। सो अगेन एक्सपोजिटरी ऐसे आपने इस चीज को एक्सप्लेन ही करना है, इससे एग्री या डिसएग्री करने का सवाल पैदा नहीं होता, एग्रीमेंट ही है। एंड देन सॉर्ट ऑफ ए लिटरेरी ऐसे कि थोड़ा सा अदबी इसके अंदर टच है। देयर इज नथिंग सो लाइकली टू प्रोड्यूस पीस एज टू बी वेल प्रिपेयर्ड टू मीट एन एनिमी। डियर स्टूडेंट्स ये कई अंदाज से पूछा गया। लिटरेरी ऐसे आमतौर पे पूछता एक ही सवाल है मगर पूछने का अंदाज थोड़ा अदबी या थोड़ा सा गैर रवायती होता है। तो यहां पे वो कह रहा क्या है कि अमन के लिए जरूरी है कि आपकी तैयारी इतनी हो कि दुश्मन का मुकाबला कर सके। गुज़िश्ता जो सीएसएस के पेपर्स हैं उसके अंदर आमतौर पे ये ऐसे इस तरह पूछा गया था कि बेस्ट डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस, कि अगर आपका डिफेंस बेहतरीन है, अगर आप मिलिटरीली मजबूत हैं तो इसका मतलब है कि आप अमन भी गारंटी कर सकते हैं। प्योरली इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर टॉपिक है और यहां पे आपने मिसाल उन तमाम ममालिक की देनी है कि जिन्होंने पीस तभी इंश्योर किया जब वो इस काबिल थे कि दुश्मन को भी मुंह तोड़ जवाब दे सके। डियर स्टूडेंट्स मैं ज्यादा माजी में नहीं जाऊंगा, यूक्रेन की मिसाल आपके सामने है कि बाय द टाइम उसने अपनी प्रेपरेशन अबेंडन कर दी, अपना न्यूक्लियर आर्सेनल सारे का सारा अबेंडन कर दिया,
इस गारंटी पे कि नेटो उसका तहफ्फुज करेगा, तो उसका अंजाम भी आपके सामने है। अमन के लिए जरूरी यही है कि आप तैयार रहें कि दुश्मन से निपटना कैसे है। आज अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डिटेरेंस है, तो बहुत सारे मौके पे बहुत सारे दुश्मन मुल्क उस वक्त रुक जाते हैं या अमन की तरफ वाबस्ता हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि आखिरी हमारे पास ऑप्शन यही न्यूक्लियर डिटेरेंस यूज करने का है। अगेन अ वेरी गुड टॉपिक, बहुत अच्छा ये टॉपिक है कि दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अमन के लिए जरूरी है कि हम इस काबिल हो जाएं कि दुश्मन का मुकाबला कर सके। मगर डियर स्टूडेंट्स, ये दुश्मनी का फ्रंटियर सिर्फ मिलिट्री ग्राउंड्स पे नहीं है, ये इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे भी है कि दुश्मन का मुकाबला इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे भी आपने करना है। अगर आपकी इकोनॉमी ही डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली दुश्मन की टर्म्स पे आपको राजी होना पड़ेगा। ये कल्चरल ग्राउंड्स पे भी आपको मुकाबला करना है कि अगर आपको कल्चरली फतह कर लिया है दुश्मन ने, तो जाहिर सी बात है कल वो आप पे हावी हो जाएगा और आप अपनी शराइत पे अमन जंग के बाद हासिल नहीं कर सकेंगे। अगेन, द बैटलफील्ड इज नॉट relevant to the arms race. It is applied to the narrative as well, to the culture as well, and obviously to the economy as well. तो इसको आप मल्टी प्रोंग जो है एक डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। एंड देन नंबर 7, लास्ट ईयर डियर स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा शोर था दैट वाज रिगार्डिंग फूड क्राइसिस। एनवायरमेंट से रेलेवेंट आपको ऐसे जरूर पूछा जाता है, तो यहां पे सवाल बहुत वैलिड और रेलेवेंट पूछा गया, रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान है, इसको दोबारा से जिंदा जावेद कैसे किया जा सकता है। अगेन ये तो एग्रीड अपॉन फैक्ट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा सफर कर रहा है। गुज़िश्ता साल ही अगर आप देख लें, जो गैर मौसमी बारिशें हुई, हेल स्टॉर्म हुई, आसमान से ओले पड़े, मुजफ्फरगढ़ और हमारे साउथ पंजाब में फसलें बर्बाद हुई, क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। अगेन इन तमाम चीजों से निपट के हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर कैसे करना है, सवाल यह है। चूंकि ये इंतहाई बेसिक सवाल था, इसलिए इस पे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाई गई थी, मगर इसके अंदर जो प्रैक्टिस है सिर्फ एक नहीं दोनों पहलुओं पे करवाएगी कि एग्रीकल्चर डिक्लाइन इन पाकिस्तान क्यों हो रहा है एंड हाउ टू काउंटर इट, कि उससे आपने निपटना कैसे है। यहां पे जो प्रैक्टिस सेशन स्टूडेंट्स के साथ करवाया गया था वो इन दोनों पहलुओं पे करवाया गया था कि डिक्लाइन की वजूहात क्या हैं और उससे आपने निपटना कैसे है। और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो यहां पे जो एडॉप्शन, जो वे फॉरवर्ड के मैयर्स लिए गए हैं उस पर अल्फाज भी यही इस्तेमाल हुए हैं, एडॉप्शन टू रिवाइटलाइज दी एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइटलाइज करने के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। एडॉप्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इंडस्ट्रियल कल्चर टू काउंटर द इकोनॉमिक फैक्टर, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कटिंग एज साइंटिफिक टेक्निक्स, building of institutes and research centers, plans to use the whole cultivable land, quality improvement to boost the yield, and building of cold storage and boosting the marketing strategies. Export and approach to foreign markets, case study from China to uplift the agriculture sector, case study भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। ये एक इंतहाई बेसिक सवाल था कि एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी आपने इन मसाइल से निपटना कैसे है। अगेन एन एक्सपोजिटरी एसे, और यहां पे एक ही सवाल है जनाब, रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, तो रिवाइटलाइज करना है तो कैसे करना है, व्हाट आर दोज वेज, तो वो रास्ते बताएं, वो तरीके बताएं कि कौन से वो तरीके हैं जिन पे चल के रिवाइटलाइज आप इसको दोबारा से कर सकते हैं। यहां पे डियर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर सेक्टर में डेफिनेटली सिर्फ क्रॉप्स नहीं आती बल्कि उसके सब्सिडियरी सेक्टर्स भी आ जाते हैं। यहां पे लाइव स्टॉक भी आप इंक्लूड कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से ही वो वाबस्ता है। यहां पे किसी हद तक आप फॉरेस्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, गो कि वो इतना ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, वो एक अलग से पूछा जाएगा, मगर
एग्रीकल्चर में डेफिनेटली फॉरेस्ट भी किसी हद तक शामिल हो जाते हैं। तो यहां पे एग्रीकल्चर से प्योरली मुराद क्रॉप्स नहीं होती, बल्कि उससे मुंसलिक जो दूसरे शोबे हैं आपको उनको भी यहां पे ऐड करना है। जी हाँ बिल्कुल जनाब, फिशरी भी जो है ऑब्वियसली इसका एक सब सेक्शन बन सकता है, प्योरली नहीं एग्रीकल्चर में मगर किसी हद तक बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने चावलों की फसलों में, क्योंकि चावल की फसल पानी के अंदर ही डूबी रहती है, वहां पे जो है फिश फार्मिंग भी साथ ही की है। सो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये फिशरी, ये जो एक स्टूडेंट कह रहे हैं, ये इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती है। सो मल्टीपल अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो आपके पास एडिशनल और भी जो है इसके अंदर सब्जेक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। सो एक सिंपल था जनाब टॉपिक, रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश है, दैट इज बेगिंग और द प्रॉब्लम ऑफ द बेगर्स। Yes, it's again पिछले साल जो बहुत ज्यादा शोर मचा था कि बेगर्स का मसला संगीन होता चला जा रहा है, और कई ममालिक इस वजह से पाकिस्तान का विजिट वीजा बैन कर रहे हैं। कई ममालिक ने इसी वजह से पाकिस्तान के लिए वीजे की सख्तियां कर दी हैं। सो बेगर्स का इशू हर फोरम पे बहुत ज्यादा मेंशन किया जा रहा था, और गुज़िश्ता साल बकायदा हमारे वज़ीर आज़म से यूएई और सऊदी अरेबिया के एनवॉइस मुलाकात के लिए आए थे, और उनका एक ही एजेंडा था कि किसी तरह इन बेगर्स को रोकें। ऐसे स्टूडेंट्स जो अखबार से अपना ताल्लुक रखते हैं, वो यकीनी तौर पे इस खबर को पढ़ के परेशान जरूर हुए होंगे कि यह इतना संगीन मसला है कि जिसको नजरअंदाज किसी फोरम पे नहीं किया जा सकता। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपके सामने डॉन की रिपोर्ट प्रेजेंट करूंगा, जिसके अंदर कहा क्या गया है कि देयर आर 230 मिलियन पीपल, कि 23 करोड़ की आबादी है, देयर आर रिपोर्टेडली 38 मिलियन बैगर्स, मगर उसके अंदर भिखारी कितने हैं जो रिपोर्ट किए गए? 3.25 करोड़। With the average daily amount a beggar collects having been estimated at rupees 2000 in Karachi, कराची में 2000 रुपए वो इकट्ठा करता है, वहां के लोग बहुत ज्यादा सखी हैं। रुपीज 1400 इन लाहौर, सखावत में इनका दर्जा थोड़ा कम है, एंड 950 इन इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के लोग इंतहाई कंजूस हैं जो कि सिर्फ 950 रुपया एवरेज एक बैगर को देते हैं। सो यहां पे डियर स्टूडेंट्स जो हैरान कुन बात थी कि पाकिस्तान में जो बैगर्स हैं वो रुपीज 32 बिलियन 32 अरब रुपए लोगों की जेब से चैरिटी के फॉर्म में निकाल लेते हैं। दिस अमाउंट इफ ऑथेंटिक ट्रांसलेट इनटू रुपीज 117 ट्रिलियन एनुअली इन डॉलर टर्म्स, अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू 42 बिलियन। अब मेरा ख्याल है जनाब ये सारी बातें जो है हमारे होश उड़ा देने के लिए काफी हैं कि यह मसला जो है कितना संगीन है। अगेन यहां पे एग्जामिनर ने इंतहाई बेसिक सवाल, हम बात तो करते हैं पॉवर्टी इरेडिकेशन की, मगर पॉवर्टी इरेडिकेशन में उसने एक सेगमेंट पे तवज्जो दी है, काउंटरिंग द ग्रोइंग मेनेस ऑफ बेगरी। एक सवाल उसने पूछा है हाउ टू काउंटर, कि भाई इसको काउंटर कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, इससे मुकाबला कैसे करना है, ये जो इतना बड़ा अजाब हम पे नाजिल हो गया है बेगरी का। बट द क्वेश्चन इज दैट क्या ये टॉपिक सिर्फ पाकिस्तान रेलिवेंट है? मुझे बताइए, बेगर्स फर्स्ट वर्ल्ड में होते हैं या थर्ड वर्ल्ड में मौजूद है? सो दुरुस्त आप फरमा रहे हैं जनाब, ये सारी थर्ड वर्ल्ड में, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड में नहीं है। सो ज्यादा से ज्यादा आप जिक्र करेंगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया हर चीज में जो है बाजी लेके जाता है। बेगर्स की तादाद भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, वहां पे बेरोजगारों की तादाद भी सबसे ज्यादा है, होमलेस पीपल की तादाद भी सबसे ज्यादा है, ठीक है, वहां पे ऑनर किलिंग भी सबसे ज्यादा है, फोर्स मैरिज भी सबसे ज्यादा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया की भी जो मिसाल इसके अंदर शामिल होगी, विच इंक्लूड्स बांग्लादेश एंड अफ्रीका एज वेल, मगर
जो मैनस ऑफ ब्रैगरी, जो आप यहाँ पे सजेशंस इंक्लूड करेंगे, वो ऑब्वियसली आपने यूनिवर्सली इंक्लूड करनी है, जो इन तमाम ममालिक पे भी लागू है। उसके बाद आता है जी पोलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, अ न्यू चैलेंज, नया मसला आ गया जी स्पोर्ट्स में पोलिटिसाइजेशन। जो कुछ क्रिकेट में हुआ है वो आपके सामने है, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी इंटेलिजेंस का मुजाहरा करना है। पोलिटिसाइजेशन ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट तक रेलिवेंट नहीं है, ऐसे इस पे नहीं लिखा जा सकता। पोलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, इसको जरूर मेंशन कीजिएगा कि हम जितने भी गुलाम नेशंस रही हैं, हमारे यहां सिर्फ क्रिकेट को ही प्रमोट किया गया, जबकि इनके ममालिक में फर्स्ट वर्ल्ड में फुटबॉल सबसे अरूज पे है, और आपके इस एशिया की टीम में कोई भी फुटबॉल के वर्ल्ड कप तक क्वालिफाई भी नहीं कर सकती। पोलिटिसाइजेशन एक इंटरनेशनल भी है, तो नेशनल की तो मैं बात ही एक अलग सेगमेंट में कर रहा हूं। सिमिलरली आप जितनी भी एलीट स्पोर्ट्स देख लें, जिसपे टेनिस आ गई है, जिसपे फुटबॉल आ गई है, जिसपे दूसरी स्पोर्ट्स आ गई है, इवन ओलंपिक भी, आप लोगों को उस तरह नुमाइंदगी नहीं मिलती। गो के उन्होंने मना नहीं किया, मगर आप लोगों के लिए रुकावटें भी बहुत हैं। सो अगेन इस पे बहुत शेर हासिल जो है, पढ़ाई चाहिए, गुफ्तगू चाहिए। आसान टॉपिक नहीं था, देखने से आसान लग रहा है, मगर लिखने के लिए कोई ज्यादा नहीं था। और आखिर में ये लॉर्ड पामर्स्टन की एक बड़ी मशहूर जो है कोटेशन है, जिसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा गया कि नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, दे हैव ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। सो अगेन जनाब, इसका ताल्लुक ना पाकिस्तान से है, ना थर्ड वर्ल्ड से, बल्कि पूरी दुनिया से है। और यहां पे आपका असल इल्म इंटरनेशनल रिलेशंस का काम आएगा, जिस पे आपके पास बेशुमार रेफरेंसेस होंगे इस बात को साबित करने के लिए कि इंटरेस्ट जो हैं वो जरूरी होते हैं, ना कि परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इंटरनेशनल रिलेशंस में। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द क्विक रिव्यू ऑफ आवर एसे पेपर। आप चाहें तो आई वेलकम द क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। अच्छा जी, सादिया ने पूछा कि लिटरेरी एसे के लिए कंटेंट कैसे कलेक्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए लिटरेरी एसे और एक्सपोजिटरी एसे में कोई फर्क नहीं है, दोनों का एक ही कंटेंट है। लिटरेरी एसे में आपने सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक को पहले इंटरप्रेट करना है कि इसका मकसद क्या है। अब यहां पे ये सीधा सीधा आपसे पूछ सकता था कि बेस्ट ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, टू मेंटेन पीस यू मस्ट आर्म योर सेल्फ, मगर उसने इस तरह नहीं पूछा, थोड़ा सा अदबी अंदाज में पूछा, देयर इज नथिंग सो लाइकली टू प्रोड्यूस पीस एज टू बी वेल प्रिपेयर्ड टू मीट एन एनिमी। तो दुश्मन से अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी अमन को बरकरार रखने में। तो अगेन लिटरेरी एसे का कोई कंटेंट अलग से नहीं है, ये आपने सिर्फ टॉपिक को इंटरप्रेट करना है, और आगे जो कुछ भी लिखना है वो सारे का सारा एक्सपोजिटरी है, एक्सप्लेन ही करेंगे। मानूर ने पूछा जनाब आउटलाइन पार्ट, देखिए आउटलाइन के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, एक या दो तो फॉर्मेट मैंने इसी आपको सेमिनार में ही शो कर दिए हैं, मगर जो बेहतर फॉर्मेट हैं जनाब, जो सारी दुनिया में फॉलो किए जा सकते हैं, एक है अल्फा न्यूमेरिक और दूसरा है डेसिमल। आप इंटरनेट पे टाइप करेंगे तो दोनों फॉर्मेट्स आपके पास निकल आएंगे। जी लास्ट टॉपिक ऑब्वियसली बेटा एक्सपोजिटरी एक्सप्लेन ही करना है ना, क्योंकि वो उसकी कोटेशन है कि कोई परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज नहीं होते हैं, और ये एक बड़ा डार्क ट्रूथ है आपकी इस दुनिया का कि कल के दुश्मन आज के दोस्त भी हो सकते हैं। जी लॉ रेलिवेंट इस बार कुछ नहीं उसने पूछा, सो होपफुली मलिक हसनैन साहब अगली बार लॉ रेलिवेंट जरूर पूछेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बहुत ज्यादा जो है शोर मच रहा है, और एग्जामिनर वही चीजें पूछता है जो उसके आसपास हो रही हैं, जो वो खुद फील करता है। सो डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स उसने अगले साल के लिए महफूज रखे होंगे। सुबह रुझान एसए की तैयारी आपने शुरू करनी है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने कंपलसरी के पेपर्स कंप्लीट करके। एसए की तैयारी आपने शुरू करनी है सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है उस सब्जेक्ट से रेलेवेंट एसए के टॉपिक्स आप अलहदा करें। आपको पता चलेगा कि आपका एसए कहां पे जो है स्टैंड करता है मटेरियल वाइज। बाकी लिखने का तरीका जो है वो एक फॉर्मेट आपको अलग से सीखना पड़ेगा, कंटेंट आपका इस तरह किसी हद तक मैनेज हो सकता है।
सबसे पहले आप देखिए आपके सब्जेक्ट रेलिवेंट एसेस कौन से पूछे गए हैं। यहाँ पे अब आप देख ले कि बेशुमार सब्जेक्ट रेलिवेंट एसेस पूछे गए हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन से रेलिवेंट भी पूछे गए हैं, लिटरेचर से रेलिवेंट भी पूछे गए हैं। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री का स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी का स्टूडेंट है, उससे एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछा गया है। सोशल साइंसेस का स्टूडेंट है जो सोशल प्रॉब्लम को डील करता है, बेगरी का क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस का स्टूडेंट है, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है इसने। तो आपने जिस सब्जेक्ट में मेजर्स किया है या बैचलर्स की है, आप देखिए उससे रेलिवेंट ऐसे का टॉपिक कौन सा पूछा गया है। तो ये जो सवाल है कि तैयारी कहां से स्टार्ट करनी है, ये बेटा आपका हल हो जाएगा। अलीना, ऐसे के पैराग्राफ्स में बिल्कुल जी अपना ही एनालिसिस आप देंगे और स्ट्रॉन्ग एनालिसिस आपने देना है। अब यहां पे हाउ टू काउंटर द मेनस ऑफ बेगरी, बेगरी का जो मसला है इसको हल कैसे करना है, तो मैं अपना एनालिसिस दूंगा। मेरा अपना एनालिसिस क्या है, बहुत सारे लोग इत्तेफाक करते हैं, बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं करते कि ये जो आप चैरिटी फ्री लंगर दे रहे हैं ये ज्यादा डिपेंडेंस पैदा कर रहा है, बजाय इसके लोगों को अपने कदमों पे खड़ा करें। कराची की जनाब एक तंजीम है, उसने कहा जनाब हम फ्री लंगर नहीं देंगे, आपने हमें डोनेशन देना है तो जनाब हम इसको एक रेडी या वेल्डिंग प्लांट लेके देंगे ताकि कारोबार शुरू करें। हम लोगों ने फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देनी, फ्री लंगर नहीं देना। और वैसे भी आपको पता है कि यूनिवर्सल असूल है, डोंट गिव देम फिश, टीच देम हाउ टू कैच इट। सो ये बेटा आपका अपना एनालिसिस है जिससे पढ़ने वाला डेफिनेटली एग्री करेगा। सो मैं यहां पे अब मिसालें दे सकता हूं सैलानी की, जिलानी की, जो कि फ्री मील्स दे रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मैंने मिसाल उस इदारे की भी दी है, अभी उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, जो कि वेल्डिंग प्लांट देता है, छोटे कारोबार जो है आपको जो एस्टेब्लिश करके देता है। तो ये मेरी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन है, ये बातें किसी किताब में नहीं लिखी, मगर ये वैलिड बातें हैं। आई होप अलीना आपको जो है इसका जवाब कुछ समझ आया होगा। वीवो V211 सर, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एन एसे राइटिंग। मैं बेटा आपको बता चुका हूँ, आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स की है सबसे पहले उस सब्जेक्ट के रेलेवेंट एसेस निकालिए, कंटेंट का आपका मसला हल हो जाएगा। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन लिखने का मेथड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो डेफिनेटली आपको जो है किसी ट्यूटर से वाबस्ता होकर सीखना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी किताबें मार्केट में मौजूद हैं, वहां से भी सीख सकते हैं। अच्छा जी, पीएमएस ऐसे पीएमएस पंजाब में कितने आर्गुमेंट्स होंगे। देखिए सीएसएस में आप 2000 या 2500 वर्ड कैसे लिखते हैं, इन मिनिमम केस 2000 वर्ड्स। सो 2000 वर्ड्स के लिए आपके पास एटलीस्ट 10 आर्गुमेंट तो होने चाहिए। 10 आर्गुमेंट नहीं है तो 8 आर्गुमेंट के साथ फिर आप मजीद 2 एडिशनल या नॉन एसेंशियल हेडिंग्स शामिल करके आर्गुमेंट्स ऐड कर देते हैं कि 10 पैराग्राफ तक तो आप पहुंचे ही पहुंचे। सो 10 पैराग्राफ से मुराद है 10 मेन बॉडी के पैराग्राफ, बाकी 11वां पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, 12वां कंक्लूजन का। इस हिसाब से देख लें आप 1500-1600 वर्ड का आपका पीएमएस का ऐसे और 2 घंटे हैं। तो अगर तो कोई टॉपिक अनसीन आ जाता है तो आप सुपरमैन भी हो तो फिर भी 8 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। हाँ, कोई टॉपिक पहले से प्रिपेयर्ड आ जाए तो हो सकता है वहां पे 9 या 10 पैराग्राफ आप लिख दें इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, तो फिर मुमकिन है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर हसन, इट इज नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर्स, इट इज ऑलवेज द क्वालिटी। तो मैंने पास होते हुए वो भी देखे जिन्होंने 2400-2500 वर्ड कैसे लिखे हैं, मैंने पास होते हुए वो भी देखे जिन्होंने 1800 वर्ड्स कैसे लिखे हैं, मगर क्वालिटी मेंटेन की है। एंड सेम इज द केस विद पीएमएस ऐसे। जी बिल्कुल, शहबाज, वे फॉरवर्ड लोकल गवर्नमेंट वाले ऐसे पे देना ही देना था। देखे कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे वही होता है कि अगर प्रॉब्लम आपने जो है पेश की है तो सोल्यूशन भी प्रेजेंट करें। तो वो मिसिंग लिंक है आपके इस गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में, तो उसको आपने एक एक्टिव लिंक में कैसे कन्वर्ट करना है, फाल कैसे बनाना है, तो लाजमी आपने लिखना था। अनुषे, जो बेहतर तरीका है ना, आप बेटा नोआ का जो मैगजीन है ना, करंट अफेयर मैगजीन्स, आप उसको स्टडी करें। 2 महीने में एक बार ये पब्लिश होता है, आप उसे स्टडी करें, क्योंकि पिछले 2 माह में जितना भी सीएसएस रेलिवेंट मटेरियल होगा वो हमने उसके अंदर ऐड कर दिया गया होगा। आपको मुख्तलिफ रिसर्च पेपर, मुख्तलिफ जनाब किताबों में वक्त जो है सर्व करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। सो यहाँ पे मकसद यही है नोआ का कि आपकी जो स्टडी है उसको स्मार्ट तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करें। तो इट इज नॉट ऑलवेज द हार्ड वर्क, इट इज ऑलवेज द स्मार्ट वर्क। सो आई वुड रिकमेंड यू नोआ करंट अफेयर्स मैगजीन बाय डॉक्टर फरीद। सानिया देखें,
सवाल को समझे बगैर आप टाइप डिफाइन नहीं कर सकते। उसने पहला सवाल आर्गुमेंटेटिव ऐसे का पूछा है कि यूथ पल जो है, बताइए ये फायदेमंद है या नुकसान है। आप स्ट्रेट आंख बंद करके नहीं लिख सकते, आपको एक लम्हे के लिए सोचना है कि भाई मैंने लिखना है तो साबित क्या करना है, क्या ये वाकई फायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो एक स्टांस लेना जरूरी है। तो इसलिए टाइप्स ऑफ एसेस में मैं कहता हूं कि एक बार थोड़ी सी तवज्जो फरमा लें। सो जो टाइप होती है उसके हिसाब से ही आप लिख सकेंगे, रैंडम जो है आप नहीं लिख सकेंगे। सो एनालिसिस तो आपने दोनों में देना है, मगर टाइप आपने जहन में जरूर रखनी है। और अगेन क्वेश्चन वही है जनाब, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये भी जरा सोच ले ब्रेनस्टॉर्म करते हुए कि किस सवाल का जवाब मैंने देना है। अली, आप इससे जो है डिसएग्री नहीं कर सकते कि जो समंदर पे हुक्मरानी रखता है वो दुनिया पे हुक्मरानी नहीं रखता। इससे डिसएग्री नहीं कर सकते क्योंकि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जितने भी हैं, जिन जिन लोगों ने समंदर पे हुक्मरानी रखी है, दुनिया पे उनकी हुक्मरानी हुई है। तो भाई आपकी जो है मुगल एम्पायर बहुत ग्रेट एम्पायर थी, मगर मार उसने कहां सिखाई कि वो समंदर पे अपनी हुक्मरानी बरकरार नहीं रख सकी। मुझे बताएं टर्किश एम्पायर ग्रेट एम्पायर कब बनी? जब समंदर पे हुक्मरानी थी। सो उनका जो था गालबन बारबरूसा, जो एक बहुत बड़ा जो है नेवल कमांडर समझा जाता था, किसी की मजाल नहीं होती थी कि रेड सी से कोई यूरोपियन जो है बहरी जहाज गुजर जाए। सो इसीलिए तो सुपर पावर तुर्की बना था। तो मैं आपको बेशुमार मिसालें दे सकता हूं कि भाई सुपर पावर वही बना है, दुनिया को उसी ने कंट्रोल में किया जिसकी समंदर पे हुक्मरानी है। तो इससे आप डिसएग्री नहीं कर सकते। सो कुछ हकाइक होते हैं, सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। दुनिया का निजाम बेईमानी पे चल रहा है, झूठ धोखा दही पे चल रहा है। लोग फ्लरिश भी हो रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं, बिलियनियर्स हो रहे हैं झूठ और फ्रॉड का बिजनेस करके। मगर फिर भी जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये कयामत तक जो है बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी ही रहेगी। तो आप इससे डिसएग्री नहीं कर सकते। मोहम्मद हसन आर्गुमेंटेटिव, ऐसे में अपोजिट स्टांस डिस्कस करना हरगिज जरूरी नहीं होता। अगर उसे डिस्कस आप करते हैं तो अच्छी बात है, वैल्यू एडिशन है, मगर फिर उसका रद्द रिबटल भी देना है। तो काउंटर आर्गुमेंट मेथड आप वहां पे अपनाएं। सैमसंग SM-A65F थ्योरीज, बेटा अंग्रेजी का पेपर है, ज्यादा थ्योरीज नहीं लिखनी, सादा अल्फाज में अगले शख्स को समझाना है। जी डॉक्टर अली साहब, 2 पेजेस की आउटलाइन भी काफी होती हैं, 3 या 4 की अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में जरूर लिखें। ऐसे के इंट्रोडक्शन में तो बाय डिफॉल्ट आना ही आना है, मगर आउटलाइन में लिखते हैं तो एग्जामिनर फैसिलिटेट हो जाएगा। तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं स्टूडेंट्स को कि लाजमी लिखें। अंदलीब हारून, हाउ टू एड डेटा इंफॉर्मेशन विद रेफरेंसेस, एनी स्पेसिफिक वे? डी स्टूडेंट्स, नोवा के कुछ ऐसे के लेक्चर्स ऑलरेडी मौजूद हैं यूट्यूब पे और नोवा के पेज फेसबुक पे। वहां पे ऐसे के लेक्चर्स में इस चीज पे बहस की गई है। बाकी बेटा अगर आपको मजीद जानना हो तो एकेडमी में आके मुलाकात कर सकते हैं, आपकी क्यूरी हल कर दी जाएगी। टेक्नोस्पार्क, इज पैराग्राफ स्ट्रक्चर सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एसेज? 100% सेम होता है भाई। पैराग्राफ पैराग्राफ होता है, याद रखिए। हाँ, डिफरेंस 2 जगह पे, एक होता है स्पेशल पैराग्राफ, एक होता है स्टैंडर्ड पैराग्राफ। जो मेन बॉडी के पैराग्राफ्स होते हैं, चाहे वो एक्सपोजिटरी एसे के हैं, आर्गुमेंटेटिव के हैं या लिटरेरी एसे के हैं, वो स्टैंडर्ड पैराग्राफ ही हैं, जिसपे पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर उसके बाद सपोर्टिंग रीजंस और उनकी एक्सप्लेनेशन। जो स्पेशल पैराग्राफ हैं उनको लिखने का एक स्पेशल तरीका है। वो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखने का एक स्पेशल तरीका है। पहले अटेंशन ग्रैबर आएगा, फिर बैकग्राउंड डिस्कशन आएगी और आखिर में थीसिस स्टेटमेंट। कंक्लूजन को लिखने का भी एक स्पेशल तरीका है, ट्रांजिशनल पैराग्राफ को भी लिखने का एक स्पेशल तरीका है। तो बेटा essay is same, so is the paragraph. Essay is essay, whether it is argumentative, expository or literary. And paragraph is also a paragraph, whether it is special paragraph or standard paragraph. जी बेटा, मेरी essay की बुक जो है वो ऑलरेडी प्रिंट में है, वो ये 1 आध हफ्ते में आ जाएगी। फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स के लिए कौन से रिसोर्सेज यूज करें? फिजा, नोआ का करंट अफेयर का मैगजीन एग्जैक्ट एक्यूरेट रिसोर्सेज बताएगा किस इदारे के हैं। ठीक है इन्फिनिक्स, कोई मसला नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में नहीं दी, इंट्रोडक्शन में दे दी है। बस इंट्रोडक्शन में लाजमी होनी चाहिए, आउटलाइन में कोई कंपलसरी नहीं है। मोइज कैसर, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, तो बेटा मैथ इज द मदर ऑफ ऑल लॉजिक। हर ऐसे के अंदर लॉजिकल डिस्कशन की गई है।
तो लॉजिकल सोल्यूशन पेश कर रहे हैं आप बैगरी के। रिवाइटलाइज कैसे करनी है एग्रीकल्चर, लॉजिकल बात कर रहे हैं। तो बेटा मैथ तो मैं कहता हूं मदर ऑफ ऑल साइंसेज है, आपसे बेहतर लॉजिक कौन जानता है। नहीं एमन, कॉजेज जरूरी नहीं है रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में, कॉजेज जरूरी नहीं है। फातिमा, दोनों स्टांस वैलिड तो होते हैं, मगर आपको बेटा एक स्टांस लेना है, सो एक स्टांस लीजिए जी। uh, 1700 वर्ड पे बेटा उम्मीद कर सकता हूं ऐसे शायद पास हो जाए, 1800-1900 तक होना चाहिए। तो बहरहाल उम्मीद रखिए, अगर कंटेंट अच्छा है तो पास हो सकता है। नोवा मैगजीन बेटा आपको नोवा एकेडमी की बुक शॉप से ही मिलेगा, ये बुक स्टोर्स पे मौजूद नहीं है। जी बेटा, फिजिक्स में बीएस किया तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। हमारे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री के बैकग्राउंड के हामिल हैं, और देखा जाए तो केमिस्ट्री वाले जो हैं हर इम्तहान में ठीक ठाक एलोकेशंस सिक्योर करते हैं। तो ये तो अब आपकी दिलचस्पी है। सो स्विमिंग पूल में उतरने से पहले तैरना किसी को नहीं आता, चाहे उसका बैकग्राउंड कोई भी क्यों ना हो, वो सीखता है, उसके लिए प्रैक्टिस करता है, उसके लिए उस्ताद की ज़रूरत है, ट्रेनर की ज़रूरत है। जी, बलूचिस्तान में 400 से 500 वर्ड्स, मोहम्मद दानियाल इसका ऐसे है, शॉर्ट ऐसे है जनाब। तो डेफिनेटली इसके लिए अब आपको पैराग्राफ की तादाद कम करनी पड़ेगी, बाकी ऐसे के पैरामीटर्स वही हैं। एंथ्रोपोलॉजी जनाब, एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं, तो बैगर्स वाला टॉपिक आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। सो मेरा ख्याल है इंतहाई बेसिक बात उसने आपसे पूछी है। जी, बॉडी पैराग्राफ टेक्नोस्पार्क के सेम फॉलोअर एसेस, थोड़ा बहुत आर्गुमेंटेटिव में परसुएसिव होना पड़ता है आपको, अगले को जरा अपना हम ख्याल बनाना पड़ता है, कुछ अल्फाजों का इजाफा हो जाता है, सिलेक्शन होती है कुछ अल्फाजों की, कि आप अगले को जो है अपना हम ख्याल बनाते हैं। एक्सपोजिटरी में डेफिनेटली आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अल्फाजों के चुनाव में हो सकता है फर्क, पैराग्राफ की टेक्निक वही है। ऑनलाइन बेटा जी ले सकते हैं आप मैगजीन सईदा जैनब। पीएमएस पंजाब कैसे कि बेटा 1500 वर्ड्स होते हैं, 1500 to 1600 वर्ड्स। जी, यहाँ पे किन्जा नासिर, मैं आपसे कहूंगा रेपिटेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ऐसे के अंदर रेपिटेशन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ब्रेन ड्रेन वाला 3 बार रिपीट हुए, 1992 में, 2012 में और फिर 2025 में। अगर वो मसला अभी भी जिंदा है तो रिपीट हो सकता है दोबारा। मास कम्युनिकेशन का डेफिनेटली जनाब, सोशल साइंसेस की चीजें मिलती जुलती हैं आपस में। सो मास कम्युनिकेशन बेटा आप यही देखेंगे, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, पाकिस्तान के लिए रिस्क और चैलेंजेस क्या है। तो मास कम्युनिकेशन में तो आप हर पहलू पे ही गुफ्तगू करते हैं। पीएमएस केपीके में भी जनाब 2000-2500 वर्ड ही हैं, पीएमएस केपीके और सीएसएस सेम। सैमसंग बेटा थ्योरीज की तरफ जरा कम जाएं, मिसालें जरा ज्यादा वाजिया करें। देखें आपका जो ऑडियंस है वो कोई पीएचडी डॉक्टर नहीं है, सादा अंग्रेजी का प्रोफेसर है। इंग्लिश एसे के अंदर टेक्निकल जार्गन्स, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का कम से कम इस्तेमाल करें। देखिए, यू आर गोइंग टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, मैं वही बात करूंगा अब्दुल्ला राजा की, 2023 19 पोजीशन। यू आर गोइंग टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, यू आर गोइंग टू बिकम अ पब्लिक सर्वेंट, तो आपकी लैंग्वेज भी अवामी होनी चाहिए। सो जीनियस वो नहीं है जो मुश्किल चीजें प्रेजेंट करे, जीनियस इज द वन हु मेक्स डिफिकल्ट थिंग्स सिंपल। और आइंस्टाइन हमेशा एक ही बात कहता था, इफ यू कैनॉट मेक इट अंडरस्टैंड टू अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5, 5वीं जमात के बच्चे को अगर नहीं समझा सके ना, इट मीन्स दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट योर सेल्फ। तो इसका मतलब है उस बात की आपको भी समझ नहीं आई थी। तो बेटा ये लेवल चाहिए। कम्युनिकेशन तभी कामयाब होती है व्हेन वन माइंड इफेक्ट्स अनदर। सो this brings me to the end of your question answer session. So dear students, thank you very much for your active participation. Inshallah ta'ala, see you soon in our next chapter. Assalamu alaikum students, thank you so much for joining us today, and I hope today's session was very valuable and useful to you, और आपके सारे question answers जो हैं वो address हुए हों।
ये सेशन हमारा YouTube और Facebook पे भी लाइव जा रहा है, जिसका मतलब है कि इसके ख़त्म होने के बाद जो है आपको वहाँ पे अवेलेबल भी होगा। तो आप में से जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, प्लीज़ फील फ्री टू व्यू द सेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑन YouTube एंड Facebook and give your feedback if you think it was a good session and we should continue this, do it next year again inshallah, या फिर हम PMS वगैरह के एग्जाम्स के लिए भी इसी तरह का सेशन रखें। So I'm personally very excited. हमने पहली दफा ये किया and I'm hoping कि इसका अच्छा feedback मिले and that you all had a great session. अच्छा, एक और बात है कि ये सेशन हम पूरा वीक कर रहे हैं, ठीक है? तो कल इसी लिंक से प्रेसियन कॉम्पोजिशन का सेशन होगा, उससे अगले दिन इसी लिंक पे करंट अफेयर्स, फिर अगले दिन पाक अफेयर्स, फिर इस्लामियात और फिर जनरल साइंस। ये इसी लिंक से ज्वाइन करें, यही फॉर्मेट होगा। यूट्यूब और फेसबुक पे हम लाइव जाएंगे एंड इट विल बी सेव्ड अप देयर, ठीक है? और इसके अलावा द सेशन इज एट 8 PM डेली विद नोआस फैकल्टी। इसी तरह का हम सेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, आपके जो हमारे फैकल्टी मेंबर है वो थोड़ा सा एनालिसिस देंगे और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। So thank you so much for joining our session, and if you need any other resources, please download our app. Play Store पे available है Noah CSS का app, or do follow our Facebook, our Instagram, and join our new upcoming orientation session. सारे details हमारे WhatsApp channel पे भी available है, हमारे WhatsApp statuses पे भी available है, and do visit our website where you can order our books from. And tomorrow, yes, कल का session sir मज़र इलाही के साथ होगा Prescient composition पे. So thank you all for joining. Take care, Allah Hafiz, and we'll see you tomorrow, inshallah. And for the hosts and Asma, Shiraz, and the Noah team, thank you so much for taking out time, and especially Sir Ali Shahab, thank you so much. Sir, I think you did a wonderful job, very well structured, and the students got a lot of great feedback. So thank you, sir, once again, and thank you all. Allah Hafiz.